मैं तमिलनाडु से आप लोगों से मिलने आया हूँ। फिर मेरी हिंदी थोड़ी बहुत ठीक है, बट आई विल प्रेफर टू डू इंग्लिश। इफ यू नीड एनी क्लैरिफिकेशन देन यू कैन आस्क, और वो हिंदी में मैं भी दोहरा सकता हूँ, नहीं तो हमारे साथी जो है वो भी दोहरा। Today we have called this press meet to talk about GST. But before I get into the details of GST, I think it's important to understand the economic situation we are in. आप सबने देखा होगा in Q2 this financial year, which is July, August, September, the GDP growth rate has fallen to 5.4%. RBI itself had said 6.6%. And to try and explain to you how important this is or how big it is, it's like your class topper suddenly failing in the exam. That 1.2% is that much of a difference. Every sector has gone down. Every sector has slowed down. Industries, consumption, and every sector across the board. So the whole country is wondering what's happened. Have we gone back to pre-liberalization growth? What is going on? 6 months ago itself, there were signs of this. If you remember Colgate, Nestle, चाहे हम टूथब्रश खरीदते हो, टूथपेस्ट खरीदते हो, साबुन खरीदते हो, शैम्पू खरीदते हो, सबकी बिकाई कम होने लगी थी. All companies were complaining that demand has slowed down. The common man does not have enough money. In fact, the CEO of Nestle said something very controversial. He said middle class is dying. Middle class is shrinking. 6 months ago we saw the signs, but today that has come in the numbers that the GDP has slowed down to 5.4%. If you look at what's happening in our economy over the last 1 year, lending has been out of control. What type of lending? Not asset lending. Credit to persons via credit cards, via fintech lending, and all of it has gone to personal consumption. Recently RBI cracked down on these ways of lending, and what has happened as a result is now household debt, जो हम घर में लेते हैं लोग, जो unsecured loan है, वो default होने लग गया है. So हमारी जो personal consumption के लिए हम loan ले रहे थे, that has now started to creep into the NPAs of banks, and this is just the beginning. You know, after COVID there was pent up demand. Everybody wanted to go out, they were more buying bigger houses, there was luxury items being purchased. वो सब कम हो गया, वो pent up demand चला गया है. इनफैक्ट थोड़े दिन पहले आपने ये भी देखा होगा कि जॉब्स तो वैसे ही आपको पता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में आज अनएम्प्लॉयमेंट में, बट पिछले 5-6 साल से देयर हैज बीन नो इंक्रीज इन सैलरीज आल्सो. ये इनफैक्ट इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिक रिपोर्ट भी आया था, आपने देखा होगा कि लोगों की आई देयर इनकम इज नॉट इंक्रीजिंग एट ऑल. इट इज ऑलमोस्ट द सेम एज इट वाज 10 years ago. सो इमेजिन यू आर गोइंग इनटू डेट, मतलब आपका लोन बढ़ रहा है, आप ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं अपने, और साथ साथ आपको नई नौकरी नहीं मिल रही है, जॉब नहीं है मार्केट में, और तीसरी तरफ से आपके जो नौकरी है उसमें भी आपकी सैलरी बढ़ नहीं रही, इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ नहीं रही है. और जहां तक सरकार का सवाल है, एज फार एज सेंट्रल गवर्नमेंट गोज, पहली बार हमारी हिस्ट्री में जो पर्सनल इनकम टैक्स पेयर्स है उनसे जितना इनकम टैक्स रेवेन्यू वसूल किया जाता है वो कॉर्पोरेशन से ज्यादा किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने. सो द अमाउंट ऑफ मनी वी कलेक्टेड फ्रॉम कंपनीज became less than what we collected from individuals for the first time 4 years ago, and since then it has only gone up. In fact, in this year up till now corporate taxes are up 1.2% year on year in terms of how much money we have collected. Only 1.2% corporate taxes have grown. That is the income tax that companies pay us. Whereas GST is up 12% year on year collection, and income tax, that is personal income tax that you and me pay, income tax pays pay, is up by 20%. So who is funding the government today is the individual taxpayer, not companies. 5 years ago, when the tax rate of the companies was reduced, from then till now, tens of lakhs of crores have been lost by this government in tax revenues. And it has reached a point now where it's the middle class taxpayer of this country who is actually funding this country's government's tax revenue.
It is actually happening because companies are not paying as much tax as they used to. So in this context, we have a regime that has created one of the worst GST systems in the whole world. There are about 50 countries in the world where they have some equivalent of this sort of GST, which is a GST or VAT. But nobody has the number of different complications that have been put in this GST system in our country. Few months ago you saw, or actually rather just I think earlier this month or last month, where you saw the finance minister trying to complicate GST even more by putting 3 different taxes on 3 different forms of popcorn. Now on even different textiles. See, because in our country the middle class is shrinking, the ultra rich and the upper middle class is actually leading in consumption. They are only buying the products. Actually more and more consumption is shifting to them. So what the government thinks they can do is they can put everything into the luxury bucket. Above 2,000 bucks, above 5,000 bucks you buy a pen, it's luxury, 28% GST. Above 3,000 bucks you buy a shirt, it's luxury, 28% GST. So they're trying to collect money again from the very people who are actually the only people left leading our consumption right now. Again, individuals, not touching the companies at all. Worse, for small to medium businesses, they are also premiumizing their products so that they can get to this customer base. If we do over taxation at that level also, even that consumption will go down like the rest of the consumption pyramid, and then you'll have lakhs of further job losses. But this government is not focused on that. It is focused on wherever it sees some revenue it can tax, it will come up with some convoluted reason to tax it, and new cesses and new excesses under the GST regime will be introduced in some sort of vague method of rationalization of tax. In the end, killing whatever consumption is already reducing in our economy. I think many of you must have seen the study that had came out a few months ago, where they said that, where it was clear that actually about almost 2/3 or 64% of our total GST collections actually comes from bottom 50% of our country. And you're all familiar with the fact that how big an issue income inequality is in our country, where only the top 1 or 2% of our country control almost half of our entire wealth. Even now with GST, what we are doing is we are actually not only, as I said, going after whatever little consumption is left in our market, because of which our industries are continuing to run, but we are also going after the poorest of the poor. Half of the GST actually is being taken from them. So you can see how GST and indirect taxation as a whole, whether it is the standard GST rate or whether it is the cesses that have been put on top of them, are leading to the slowdown in our economy that now we are seeing in the GDP numbers. This has been happening for a while. Only now it is becoming apparent in the GDP numbers that can't be hidden. 6 months ago, maybe this is why the finance ministry decided to stop publishing the GST numbers. Every month we used to get new high for GST, new high for GST. It's too much, they stopped it. They started to keep quiet. मेरे को थोड़ी सी हिंदी में बात करने के लिए कहा है, कोशिश करूंगा कि ये फाइनेंशियल मैटर्स जो है थोड़ा अंग्रेजी में मेरे को ढंग से आती है बोलने के लिए, बट हिंदी में बात करने की कोशिश करूंगा। देखिए, हाँ, देखिए आज की तारीख में लगभग 9 GST रेट है। अगर 0%, 0.25%, 1.5%, 3, 7.5%, 28% आप देंगे, और अलग अलग सेस रेट भी है, जैसे मैं आपको कह रहा था, अभी टबैको पे सेस रेट डाल के 35% तक पहुंच गया है। हमारे जो पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे अरविंद सुब्रमण्यम, आपको याद होगा, जेटली जी के टाइम पे थे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, बहुत अच्छे इकोनॉमिक सर्वे लिखते थे, जो बजट से पहले आती है डॉक्यूमेंट, वो भी बहुत अच्छे होते थे। उन्होंने एक्चुअली जीएसटी पे कहा है कि ये जो कंफ्यूजन चल रहा है रेट्स की वजह से इस जीएसटी में,
इससे कोई भी स्मॉल बिजनेस फंक्शन नहीं कर सकता है। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन चल रही है भैया। अगर पॉपकॉर्न में ही 3 अलग पॉपकॉर्न के 3 अलग रेट्स है, अगर आपने कोई दही को आपने पैकेट में ले लिया या फिर उसको ब्रांड करके आपने पैकेट बंद करके सील कर दिया, तो अलग अलग चीज के रेट्स में हर बार ही कोई जीएसटी का वायलेटर बन के रह जाता है। तो ये तो कंप्लायंस ही इम्पॉसिबल हो गया छोटे बिजनेस के लिए। ये बड़े बिजनेस के लिए तो बहुत अच्छी चीज है, उनके पास तो वैसे ही बहुत बड़े बड़े कंप्लायंस डिपार्टमेंट है ना। मगर जो छोटे बिजनेस है, छोटे व्यापारी है, उनको तो आप पेनल्टी भी ठोक दोगे डिपार्टमेंट की तरफ से, तो कितना फॉलो अप कर पाएंगे वो? अगर वो जिस दिन काम पे नहीं जाएंगे, उनकी बिकाई नहीं होगी, तो वो धंधा कैसे बढ़ेगा उनका? बहुत सिंपल बात है ना। तो ये कॉम्प्लिकेशन से एडवांटेज सिर्फ बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों को मिलता है। और मैं कह रहा हूँ ये कॉर्पोरेट कंपनियां तो वैसे ही उनको कॉर्पोरेट उनका जो टैक्स रेट है कम किया गया है। अगर उन्होंने बैंक से हजारों करोड़ में लोन किए हैं, वो लोन्स भी फॉरगिव होंगे। फॉरगिव मतलब एनपीए से हटा के उन्होंने कहते कि हमने राइट ऑफ नहीं किया भाई कितना कलेक्ट किया आपने? अगर जिस दिन बैंक एनपीए से एक लोन हटा देती है अपने बैलेंस शीट से, तो वो क्या कन्वर्जन है उसकी भैया, जाके वो कलेक्ट करने वाले हैं उस लोन को? उनको इंसेंटिव ही नहीं है इसका। उनकी बैलेंस शीट क्लीन हो जाती है और वो चले जाते हैं, चलो जो भी मिल जाता है उसमें 10% 5% बाद में देखा जाएगा। तो ये जो बार बार चल रहा है ना, ये एकदम इकोनॉमी को कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश की जा रही है कि बस ये 3-4 हर सेक्टर में आप देखेंगे। जैसे एयरलाइन में अगर आप लेने की कोशिश करेंगे, कहीं फ्लाइट जाने की कोशिश करेंगे, तो आपने आजकल दाम देखे फ्लाइट के? क्यों? सारे सेक्टर में ऑलमोस्ट 1 या 2 से ज्यादा एयरलाइन है ही नहीं। तो जब कंपटीशन ही नहीं होगा तो क्या होगा? दाम बढ़ेंगे तो क्या होगा? आम आदमी की प्रॉब्लम होगी ना। अब उसी आम आदमी को हम जीएसटी में मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो कमाल ही होगी है। कहीं से तो राहत मिलनी चाहिए। हम तो देख रहे हैं कि 10 साल से शायद वित्त मंत्री कुछ ना कुछ करेगी आम आदमी के लिए। नया टैक्स स्कीम लाई इनकम टैक्स का, उसमें भी कुछ मिला नहीं। उसमें पता नहीं 4-5 कैलकुलेशन करके 5,000 रुपए ही बचते हैं एंड ऑफ द डे में। आप लोगों ने देखा होगा वो बहुत बड़ा आम आदमी का उन्होंने राहत दी, जैसे उन्होंने बात की उस टाइम के बजट में। तो ये सरकार जिस राह पे चल रही है, और अब अगर आप पूछोगे कि भैया 5.5% क्यों हुआ है हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट, बढ़ क्यों नहीं रहा, तो कहेंगे सर वो चुनाव आया था ना, इसलिए ना सरकार खर्च नहीं पाई ज्यादा। और सरकार खर्चेगी नहीं तो उन्नति नहीं होगी, इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ेगी। पर आप खुद ही सोच के देखिए कि हम जब से लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स हम लाए 91 से, तब से वी आर अ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लेड इकोनॉमी। मतलब इंडस्ट्रीज अगर इन्वेस्ट करेंगी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, नए प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेगी, तभी जॉब क्रिएट होगा। जॉब्स क्रिएट होंगे तो सैलरीज आएंगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा। कंजम्पशन बढ़ने से दोबारा इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करेंगे। बहुत सिंपल चीज है। आप सरकार के थ्रू ही सारा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, मगर उससे कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं रहा है। इस बार आप देखेंगे अगर अभी आने वाले बजट में प्राइवेट इंडस्ट्री ने जाकर अपनी मांग रखी है, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भैया जो आम आदमी के हाथ में थोड़े पैसे दीजिए ताकि वो थोड़ा खर्चा करना चालू करें। अगर वो थोड़ा खर्चा करेंगे तभी तो हम लोग जाके उत्पादन करेंगे, हम इंक्रीज करेंगे प्रोडक्शन को। आप बार बार हमारे पास आ रही है वित्त मंत्री जी बोल के कि आप प्लीज अपना कैपेसिटी इंक्रीज कीजिए, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कीजिए। बट हमारे पास इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने का कोई फायदा ही नहीं है जब कस्टमर ही नहीं है। और कस्टमर के सारे पैसे तो आप टैक्स में लेके चले जा रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल डीजल पे टैक्स हो, चाहे वो जीएसटी के अलग अलग क्या कहते हैं स्लैब्स हो। तो ये प्रॉब्लम जो है ना, ये आज बढ़ के हमारे जीडीपी तक पहुंच गई है कि लोगों को जो लोन भी मिल रहे थे, जो कंजम्पशन कर रहे थे जिससे, वो भी बंद हो गया आरबीआई की वजह से। तो अब जब कंजम्पशन ही नहीं है तो प्रोडक्शन जितनी थी उससे भी स्लो डाउन होती है। तो ये आने वाले दिनों में हमें, अनलेस हम इस जीएसटी को हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, इसको ठीक नहीं करेंगे, इसकी कॉम्प्लिकेशंस नहीं निकालेंगे, बेवजूद जहां पे भी कंजम्पशन है जाके उसको 30% 28% सेस डाल के उसको टैक्स करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो ये हमारी इकोनॉमी दोबारा 8% 8.5% पे ग्रो नहीं करेगी। और अगर ये ग्रो नहीं करेगी तो ये देश के लिए बहुत ही ज्यादा गंभीर विषय है। क्योंकि हमारे जैसी इकोनॉमी में जहां पे अभी भी बहुत ही लोग, करीबन 80 करोड़ लोगों को जो फ्री अनाज दिया जा रहा है, जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं अभी भी, आप बेशक सरकार के आंकड़े मान लो कि भैया कोई भी गरीब नहीं है वो तो कहेंगे, तो
मगर अनाज तो सबको दिया जा रहा है ना, इतने लोगों को दे रहे हैं तो गरीबी में है ही लोग। तो अगर उन लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना है तो हमें आज नहीं, अगले 10 साल 15 साल तक 8.5% अपनी जीडीपी को ग्रो करते रहना है। ये 5% 5.5% जीडीपी ग्रोथ में लोग गरीबी की रेखा के नीचे ही जाएंगे, ऊपर नहीं आएंगे। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और इसलिए हम ये प्रेस मीट के थ्रू बेसिकली हम सेंट्रल गवर्नमेंट को मेन यही कहना चाह रहे हैं कि भाई हमारे जो मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने कहा था जब हम जीएसटी लाने वाले थे, बहुत ही सिंपल 3 स्लैब वाला जीएसटी की हम बात कर रहे थे, न्यूट्रल प्लस एंड नेगेटिव, ठीक है, जिसमें एग्जेम्पशन भी था। तो उसी तरीके का एक जीएसटी सिस्टम इमीडिएटली हमें इस देश में लागू करना चाहिए। और हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जो है, जो उन्होंने हमारे न्याय पत्र में हमने जो प्रोमिसेस किए थे, जैसे एम्प्लॉय लिंक्ड इंसेंटिव दिए थे, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम की बात की थी हमने, इन चीजों को उन्होंने लागू किया है। तो हमें विश्वास है कि भाई वो जीएसटी पे थोड़ा ध्यान देंगे तो जीएसटी का जो अभी टूटा हुआ सिस्टम है, जिससे ना सिर्फ आम आदमी को ठेस पहुंच रही है बट छोटे दुकानदार, व्यापारियों को और इंडस्ट्रीज को ठेस पहुंच रही है, वो ठीक कर पाएंगे। तो आपके थ्रू हम ये डेफिनेट मैसेज देना चाहते हैं सबको कि अब वो अलार्म बज चुका है। अब हम सबको जाग जाना चाहिए कि भाई आम आदमी की जो कमर है, वो कमर तोड़ महंगाई तो चली रही थी, बट अब ये टैक्स एक तरीके से टैक्स टेररिज्म हो गया है कि जहां पे भी आम आदमी खर्च कर रहा है, उसके जेब से अगर वो 10 रुपए ले रहा है तो 5 रुपए सरकार खींचने की कोशिश करेगी। ये इमीडिएटली हमें बंद करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो जो हमारी पिछले 15-25 साल से, जो हम 91 से जो हमारी उन्नति चालू हुई थी देश की, जो पूरा जो दुनिया है हमारी तरफ मुड़ के देखता है, बोलता है कि भाई इतने करोड़ लोग युवा हैं, इंडिया सही रास्ते पे चल रही है, डेमोक्रेसी है, सब ठीक है, वो सब बंद हो जाएगा। इन लोगों को हमें काम देना पड़ेगा, इन लोगों को अच्छी सैलरी देनी पड़ेगी, इनकी कंजम्पशन की वजह से इंडस्ट्री बढ़ेगी, तभी देश आगे बढ़ेगा। ये एक जीएसटी ने, एक खराब जीएसटी ने इतना हमें हार्म पहुंचाया है कि इसको ठीक करना इमीडिएट, ऑलमोस्ट अर्जेंट सवाल बन